So good morning students. I hope you all are well. Students, in my last video I told you about the limitations of file-based system, that how the file-based system was not good over to the computer when we are just using the computer for storing the data. Students, as you know, बिफोर टू द कंप्यूटर, जब कंप्यूटर मार्केट्स के अंदर नहीं था, एट दैट टाइम रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का किस तरह से किया जाता था? मैनुअल मेथड्स. मैनुअल मेथड मीन्स पेन एंड पेपर रजिस्टर्स इनके अंदर. आफ्टर देन जब मार्केट के अंदर फाइल दैट कंप्यूटर्स इंट्रोड्यूस्ड हुए, एट दैट टाइम the people started to store their data over to the computer. So the bigger organizations were storing their lots of data is in the form of records, and these all our records were stored in the separate files. So the computer is storing the data first in the separate files. The system of storing data in separate files is known as file based system. स्टूडेंट, फाइल बेस्ड सिस्टम बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, बिकॉज वहाँ पर किसी तरह का डेटा में आपस में रिलेशन नहीं होता था, एज वेल एज वहाँ पे डेटा जो था सेपरेट फाइल की फॉर्म में था. देयर वाज नो सिक्योरिटी, सर्टेन नंबर ऑफ लिमिटेशंस वी हैव ऑलरेडी बी सीन. सो स्टूडेंट्स, नाउ दीज डेज कंप्यूटर सिस्टम आर totally converted, and that computer systems are usually stores data is in the form of database. So most of the organization right now are using the database to maintain the data in a particular in an organized way. So students, these days computerized database can be seen, which is used everywhere. Like if you are just going through a police station, then they are just using their database. They are just storing the database in which all the data of the criminals as well as the that crimes were stored there. Even in the certain number of records form, the related information is already been stored in the particular database. So students, we can say that whenever anyone wants to take that particular detail from that database, then they can easily be extract the data which is required from the database. So student, this is the most benefit of the database, that is कि whenever we require the data, it delivers us the relevant data only. So student, it was just a revision, because ये बात मैं आपको बता चुका हूँ what actually database management is. So student, simply database management system is what? Simply database management system is a system of storing data in computer. Okay. It is storing the data in a specific format. Okay, एक specific organized structure के अंदर डेटा को स्टोर किया जाता है, और वो स्टोर करने वाला जो स्ट्रक्चर था वो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया भी था. देयर वर 4 स्ट्रक्चर्स जिसमें डेटा को स्टोर किया जाता है: नेटवर्क मॉडल, हायरार्किकल मॉडल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल एंड रिलेशनल मॉडल. बट in our course we have only relational model of storing data, so we are talking about that only. So we are just storing the data in relational model, means we are using the RDBMS मतलब relational database management system, in which data is stored in the tabular format. relational database management system का format क्या होता है डेटा को स्टोर करने का? टेब्यूलर फॉर्मेट. ओके बच्चों, कोई भी जब आप एक पर्टिकुलर डेटाबेस को आप स्टोर करते हो, तो यहाँ पे देखिए कई सारे एग्जांपल्स दे रखे हैं डेटाबेसेस के, लाइक MySQL, PostgreSQL, MS Access, Oracle, MySQL Server, DB2, Sybase. ठीक है, ये सारे ही जितने भी डेटाबेसेस है बच्चों, ये सारे के सारे कोई रिलेशनल मॉडल पे काम करता है, कोई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे, कोई नेटवर्क मॉडल पे. But out of them we have only a single relational database in our course, जिसके बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि the MySQL, आपका Oracle and MS Access, and that's all. These all are relational database management system which store data in a particular that is tabular format. Okay, so a database gives us the tool to. What are the benefits of database? So simply डेटाबेस हम लोगों को क्या क्या पावर देता है वो यहाँ पर दे रखी है. इट स्टोर डेटा इन स्ट्रक्चर्ड वे.
डेटाबेस स्टोर्स डेटा इन स्ट्रक्चर्ड वे। वी कैन क्वेरी द डेटाबेस, मतलब सपोज आपने डेटाबेस के अंदर लॉट्स ऑफ डेटा को स्टोर कर लिया, तो आपने एक बार डेटा को स्टोर कर लिया ना, अब आप उसमें से डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए क्वेरी कर सकते हो डेटाबेस से, मतलब डेटाबेस से डेटा को निकाल सकते हो। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, सॉर्ट एंड मैनिपुलेट द डेटा इन द डेटाबेस। बच्चों सॉर्ट का मतलब होता है डेटा को अरेंज करना, और मैनिपुलेट का मतलब होता है उसको मैनिपुलेट करना। मैनिपुलेट मीन्स उसको सर्टेन टाइम पर अपडेट कर देना, डिलीट कर देना, मॉडिफाई कर देना। दीज आर द सर्टेन हैंडल्स। ओके, so we can do the certain activity like sorting. Sorting means arrangement of data even in ascending or descending order of a particular thing or not, like that. And manipulation means updation, deletion, etc. सपोज करो, जैसे सपोज करो बच्चों, आपने एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लाइक आपका स्कूल ले लो, आपके स्कूल के अंदर आपने अपनी इन्फॉर्मेशन को डेटाबेस के अंदर स्टोर करा रखा है। इन फ्यूचर आप लोगों का एड्रेस चेंज हो गया, आप लोगों का फ़ोन नंबर चेंज हो गया, तो आप लोग उसको चेंज कराने जाते हो ना, तो वो सारा चेंज कराने से पहले वो तो कंप्यूटर के अंदर स्टोर्ड है। तो जैसे ही आप हमारे कैंपस के अंदर आकर स्कूल के रिसेप्शन पे उसके लिए क्वेरी करते हो, भाई आई हैव टू चेंज माय पर्टिकुलर डेटा, जो एड्रेस है, जो मेरा फ़ोन नंबर है, दैट हैज़ गॉन चेंज, सो आई नीड टू चेंज इन द स्कूल रिकॉर्ड ऑल्सो। सो सबसे पहले जो हमारा डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है, वो पर्सन जो कंप्यूटर पे डेटाबेस को हैंडल कर रहा है, वो क्या करता है, सबसे पहले आपके रिकॉर्ड को ह्यूज डेटा में से एक्सट्रैक्ट करता है और उसको अपडेट कर देता है, और उसको अपडेट करके जो फाइनल रिजल्ट्स होते हैं उनको परमानेंटली सेव कर देता है। बच्चों इस तरह के ऑपरेशंस भी आप डेटाबेस पे कर सकते हैं। ठीक है। डेटाबेस का मतलब ये नहीं है कि एक बार जो उसके ऊपर डेटा आपने स्टोर कर दिया इट इज़ परमानेंट, वो लास्ट में आगे जाने के बाद अपडेट नहीं हो सकता है 100% हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपको पर्टिकुलर रूल्स और सर्टेन रेगुलेशंस फॉलो करने होंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट इज validate the data entered and check for the inconsistency. As I told you student, database removes the inconsistency and validation. स्टूडेंट आप लोग जैसे ही डेटाबेस को हम इंस्टॉल करेंगे और हम वर्क करना स्टार्ट करेंगे, आपको एक बात का पता लगेगा कि जब भी हम डेटा बेस के अंदर डेटाज को डिफरेंट टेबल में भी स्टोर कराते हैं ना, तो डिफरेंट टेबल में स्टोर होने के बावजूद भी द टेबल आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। और जब वो टेबल्स आपस में इंटर रिलेटेड होती है, मतलब रिलेशन में होती है, तो उससे क्या होता है, रिलेटेड डेटाज जो होते हैं ना, उनकी वैलिडिटी चेक होती है। वैलिडिटी मतलब डज दैट पर्टिकुलर इफेक्ट विच वी आर परफॉर्मिंग टू द डेटाबेस इज वैलिड और नॉट। सर कोई एग्जांपल है? यस आई हैव। बच्चों सपोज करो मैंने आपको बोला था एक स्कूल के इंफॉर्मेशन की टेबल है और एक स्टूडेंट के स्टैंडर्ड अटेंडेंस रिकॉर्ड की टेबल है। तो इस इंफॉर्मेशन की जो टेबल है और अटेंडेंस रजिस्टर की जो टेबल है ना बच्चों, वो दोनों टेबल अलग अलग जगह पे मेंटेन होती है। एक रिसेप्शन पे होती है और एक क्लास टीचर अपने स्टूडेंट, मान लो कंप्यूटराइज्ड अटेंडेंस लेता है बंदा टीचर, तो वो अपने पास अपने कंप्यूटर में अटेंडेंस को नोट कर रहा है, लेकिन द बोथ टेबल्स हैव द रिलेशन इन बिटवीन देम। ओके, उन दोनों के बीच में रिलेशन होगा। तो उससे क्या होगा, सपोज करो आपके पेरेंट आके रिसेप्शन पे पूछते हैं कि भाई हमारा बच्चे की अटेंडेंस क्या है, तो रिसेप्शन पे तो अटेंडेंस है नहीं, लेकिन रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अकॉर्डिंग जो टेबल आपकी रिसेप्शन पे है और जो टेबल आपकी कंप्यूटराइज्ड आपकी क्लास टीचर के पास थी अटेंडेंस की, दे बोथ आर कोरिलेटेड ना, दोनों आपस में इंटरलिंक्ड है। तो रिसेप्शन से भी आपको पेरेंट को अटेंडेंस बताई जा सकती है बिना किसी टीचर के इन्वॉल्वमेंट के। क्यों? क्योंकि ऑल द अटेंडेंस टेबल्स आर इंटरलिंक्ड विद द स्टूडेंट इंफॉर्मेशन रजिस्टर जो कि रिसेप्शन पे अवेलेबल है। तो उस तरह से आप आसानी से डेटा को वैलिडेट और अपडेट कर सकते हैं और उसकी इनकन्सिस्टेंसीज भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, और डेटा की इनकन्सिस्टेंसी को चेक करना मतलब उसको कंसिस्टेंट बनाना। ओके, आप आसानी से यहाँ से फ्लेक्सिबल रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल रिपोर्ट्स मतलब जैसे सपोज करो आपके स्कूल के अंदर थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स है, उनका रिकॉर्ड मेंटेन है, तो उन 1000 में से सिर्फ मुझे क्लास 7th A के बच्चों का ही स्टूडेंट रिकॉर्ड देखना है। तो सपोज करो फाइल बेस्ड सिस्टम होता तो वो तो आपको सारा ऑलमोस्ट डिलीवर करता, अगर उसमें पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड नहीं है तो। ठीक है भाई, पर्टिकुलर रिपोर्ट निकालने के लिए वहाँ पे पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना पड़ता है, पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर्स क्रिएट करने पड़ते हैं, कोड करने पड़ते हैं, जबकि यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे तो आप एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में क्वेरी करो और क्वेरी करते हैं उसका पर्टिकुलर बिल्कुल ही फ्लेक्सिबल रिपोर्ट जनरेट होती है जो कि आपकी
ओनली द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन होती है जिसके अंदर, जिसके लिए आपने क्वेरी करी है। ओके, आप उसको चाहो तो स्क्रीन पर भी देख सकते हो और आप चाहो तो पेपर के ऊपर प्रिंट भी निकाल सकते हो, ठीक है, which is easier to manage the information into the database if you are maintaining it. So students, as I told you that we are having 4 kind of databases. Out of them only not 4 kind of database, we can say that 4 methods of storing data into the database, but out of them we have only in our course, that is relational database management system, so we are talking for that only. So students, as I told you, this is the structure over to the screen, which shows that how the particular tables, as I told you na, in relational database management system, data is stored in the form of relation, and relation means table. So students, here it is mentioned that how the particular tables are stored in the database. In database, we are storing the data is in the form of a table. Like here it is mentioned that this table is named as customer table. So student, as their name is customer table, so it is storing the data into the form of table, and it stores all the records of customers. बच्चों गौर से देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पे हम थ्योरी पढ़ते हैं RDBMS की. सो एज आई टोल्ड यू इन प्रीवियस वीडियो दैट रिलेशनल डेटाबेस स्टोर डेटा इन टेबुलर फॉर्मेट. अ टेबल इज सिमिलर टू अ स्प्रेडशीट. स्प्रेडशीट मतलब वही रो और कॉलम जहाँ इंटरसेक्ट होते हैं, ठीक है. अ टेबल रेफर्स टू द 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. टेबल को हम 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा भी बोलते हैं. याद कर लो बच्चों, जब भी एक वर्ड आता है ना टेबल, तो आप ये समझिए रिलेशन, और जब भी वर्ड आए रिलेशन, इसका मतलब इट इज़ द 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा ओवर इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम, ठीक है. सो लेट आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ दिस टेबल. लाइक दियर नेम इज द, टेबल का नाम क्या है बच्चों, कस्टमर, विच स्टोर्स द डेटा ऑफ ऑल द कस्टमर्स. ओके, तो बच्चों यहाँ पे टेबल के देखो, सबसे पहले कॉलम हेडर्स दे रखे हैं. तो ये कॉलम हेडर्स क्या क्या है, कस्टमर आईडी, फाइल फर्स्ट नेम ऑफ द कस्टमर, लास्ट नेम ऑफ द कस्टमर, एड्रेस ऑफ द कस्टमर एंड टेलीफोन नंबर. यानी ये किसी भी कस्टमर के बारे में बच्चों कितनी बातें स्टोर करता है, 5. कोई भी द सर्टेन 5 इंफॉर्मेशन इट इज स्टोरिंग अबाउट द कस्टमर्स. लाइक कस्टमर की आईडी, कस्टमर का फर्स्ट नेम, कस्टमर का लास्ट नेम, एड्रेस एंड फोन नंबर. अब नाउ बच्चों, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट रो, ये तो हो गए बच्चों कॉलम्स, ये तो क्या हो गए बच्चों, कॉलम्स. नाउ अब मैं रोज की बात करता हूँ. तो बच्चों ये जो सबसे पहली रो है, दिस इज द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट अ स्टूडेंट. ये क्या है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन. तो बच्चों इसे हम क्या बोलेंगे, एक रिकॉर्ड. क्या बोलेंगे, एक रिकॉर्ड. अ रिकॉर्ड इज द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट एन एंटिटी और एन ऑब्जेक्ट विद इन अ टेबल. तो गौर से देखिए, इसको पढ़ेंगे कैसे. 101 is the customer ID whose first name is Prachi, whose last name is Mehra, whose address is 145 Mahatma Avenue, Delhi, and their phone number is mentioned here. तो इस तरह से it is giving the complete information about a record. Understand? Like that, many records we are maintaining within a table. Okay? So this is complete column. This is complete column of a table. Like customer ID, having all the customer IDs only. First name contains all the first names, last name contains all the last names, address column contains all the addresses. Means all the column, जितने भी कॉलम होते हैं बच्चों, वो एक कोरस्पॉन्डेंट टाइप का ही डेटा टाइप का वैल्यू, मींस एक कोरस्पॉन्डिंग टाइप का ही डेटा अपने में स्टोर करते हैं. जैसे देखिए, कस्टमर आईडी के नीचे सारी कस्टमर आईडी है, फर्स्ट नेम के नीचे सारे फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम के नीचे सारे लास्ट नेम है, ठीक है. और जब ये सारे कॉलम्स आपस में इंटरलिंक होकर आपस में डेटा को स्टोर करते हैं, तो एक कंप्लीट रिकॉर्ड आपको डिलीवर करते हैं. और एक कंप्लीट रिकॉर्ड जो होता है वो एक किसी भी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का रिकॉर्ड हो सकता है जिसके बारे में हम इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं. तो बच्चों इस तरह से यहाँ पे डेटा स्टोर किया जाता है. यहाँ पे ये हो गए आपके कॉलम्स. MySQL के अंदर हम जब भी वर्क करेंगे तो इसी टेबुलर वे में डेटा को स्टोर करेंगे, बिकॉज मैंने आपको बताया था दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाउ RDBMS means how database which work on relational model stores the data. और रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के स्टोर्ड जो कंसेप्ट है उस पर काम करने वाले मैंने 3-4 सॉफ्टवेयर्स के नाम बोले थे ना, जिनमें से हम कौन सा यूज़ करते हैं, MySQL. तो MySQL के अंदर हम इसी तरह से टेबल्स के अंदर डेटा को स्टोर करेंगे बच्चों. ओके, सो देखो
यहाँ पर मैंने आपको बता ही दिया है कि कौन सी चीज़ क्या है, ठीक है। और नाउ रिलेशनल डेटाबेस मॉडल के अंदर एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है, डेटा रिलेशन के फॉर्म में रहता है। देखिए बच्चों, यहाँ पर मैंने बता रखा है कि देयर इज़ अ डेटाबेस नेम्ड एज लर्नर। एक लर्नर नाम का डेटाबेस है जिसके अंदर हम तीन टेबल्स को मेंटेन कर रहे हैं। एक है स्टूडेंट टेबल, एक उसकी पार्टिसिपेंट टेबल और एक है एक्टिविटी टेबल। बच्चों एक बात हमेशा ध्यान रखना, एक डेटाबेस के अंदर आप न्यूमेरस मतलब बहुत सारी टेबल्स को स्टोर कर सकते हो। तो यहाँ पे डेटाबेस का नाम क्या है, लर्नर। डेटाबेस का नाम क्या है, लर्नर। और यहाँ पे मोर देन टेबल्स हैं, मोर देन 1 टेबल्स हैं जो कि लर्नर डेटाबेस के अंदर है। अब बच्चों सारी की सारी टेबल कुछ ना कुछ तो स्टोर करती है। जैसे स्टूडेंट टेबल स्टूडेंट का नेम और स्टूडेंट की आईडी स्टोर कर रही है। इस पार्टिसिपेशन टेबल स्टूडेंट की आईडी और एक्टिविटी जिसमें वो पार्टिसिपेट करेगा वो स्टोर कर रही है। एक्टिविटी टेबल क्या एक्टिविटी और उसकी पर्टिकुलर कॉस्ट कितनी है वो स्टोर कर रही है। अब बच्चों गौर से देखो इन टेबलों में किस तरह से लिंक क्रिएट किया जाता है। तो देखो स्टूडेंट टेबल के अंदर स्टूडेंट आईडी कॉलम है, दैट इज कोरस्पॉन्ड टू द लर्नर टेबल, पार्टिसिपेंट टेबल के अंदर भी स्टूडेंट आईडी है, ठीक है। तो अब गौर से देखो बच्चों इन दोनों के बीच में रिलेशन कैसे होगा। पर्टिकुलर स्टूडेंट इज हैविंग पार्टिसिपेशन इन मैनी एक्टिविटीज विच इज गिवन इन द पार्टिसिपेंट टेबल। तो यहाँ पे स्टूडेंट आईडी कॉमन हो गया ना, स्टूडेंट आईडी कॉमन हो गया। अब स्टूडेंट आईडी बच्चों यहाँ पे कॉमन हो गया ना, तो इसका फायदा क्या होता है, अगर मुझे ये पता लगाना है कि कौन से स्टूडेंट किस एक्टिविटी में पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, तो आई कैन इजीली वी गेट द डेटा बिकॉज द बोथ टेबल आर इंटरलिंक्ड टू ईच अदर। सर कैसे, देखो बच्चों हर स्टूडेंट के नेम के सामने उसकी कॉरस्पॉन्डिंग स्टूडेंट आईडी है जो कि यूनिक होती है। अब मान लो 84 नाम के 84 स्टूडेंट आईडी जिसकी है, जिस बच्चे का नाम है KS लक्ष्मी, उस बच्ची ने देखो बच्चों कौन सी एक्टिविटी में पार्टिसिपेशन कर रहा है, एक कर रखा है, एक तो स्विमिंग में और एक डांस में। तो स्विमिंग और डांस के आगे उसकी स्टूडेंट आईडी आ रही है। तो अब जैसे सपोज करो मुझे ये डेटा देखना है कि वो K लक्ष्मी नाम की बच्ची ने कौन सी एक्टिविटी में पार्टिसिपेशन कर रखा है। तो बच्चों ये 84 नंबर ऑफ आईडी इज कोरस्पॉन्डेंट टू द 2 records of participation table whose value is swimming and dancing। तो एक तरह से KS लक्ष्मी जो बच्ची है is related to which 2 activity, swimming and dancing। तो इस तरह से बच्चों रिलेटेड डेटा में आसानी से गेट कर लेते हैं और डेटा की इसी रिलेशन को रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं, ठीक है। सो रेस्ट ऑफ द थिंग हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।